अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। वो है जी पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? द पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग। हु इज अ ट्रैवलर पासिंग थ्रू द वुड्स? whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? In the first stanza of the poem stopping by woods on a snowy evening, the speaker refers to the owner of the woods he is passing through. He knows that the owner lives in village and is not there. Why does speaker stop in the darkest evening of the year? The beauty of the pastoral woods on the snowy evening has so much charm in it. The poet is overwhelmed by the emotional effects of dark woods, so he wants to enjoy the beauty of nature. Why does the horse impatiently await the next move of his master? The horse think it queer to stop in the woods on the darkest evening of the year because there is no farmhouse nearby. He feels it a mistake of his master and awaits the next move impatiently. The speaker in the poem is captivated by the nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? Speaker is captivated by the nature, but he does not stop there for long as he has many other responsibilities of life to perform. He wants to maintain a balance between the world of reality and imagination, his love for nature and responsibilities of life. नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है व्हाट हिडन मीनिंग द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वेज टुवर्ड्स वुड्स। वुड स्टैंड फॉर ब्यूटी ऑफ नेचर एंड रिप्रेजेंट डार्क एंड ब्राइट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रांजिटरी वर्ड which is not a destination of man. House represent human population and activities. Horse is a basic instinct that warns humans of possible danger. Harness bells are warning sounds unconscious. Downy flakes represent the comfort of life and they also show charm of scene and beauty of nature. नेक्स्ट हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि वर्ड जिसको साउंड सेम हो। हुज बूट्स, इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू अल्ट्रेशन है, ये सारे अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने अल्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इमेजरी आया था। वो कह रहा है जो आपको वर्ड बताए गए सेंटेंस बताए गए बताओ इसमें कौन सी हमारी सेंस यूज हुई है। हिज हाउस विजुअल है, वॉच हिज वुड्स विजुअल है, हिज हार्नेस बेल सुनना ऑडिटरी है, माई लिटिल हॉर्स ये विजुअल है, डाउनी फ्लेक्स ये टेक्टाइल है, इजी विंड ये ऑडिटरी है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस। पहला है दी वुड्स वी वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। क्वियर हिज क्वियर अपीयरेंस सरप्राइज्ड एवरीवन इन द मीटिंग। हार्नेस ही हार्नेस हिज हॉर्स वेरी स्किलफुली। यू हार्नेस योर एनर्जी यू विल अकम्प्लिश अ ग्रेट। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। डाउनी फ्लेक्स ऑफ स्नो वर वेरी नाइस टू फील। डाउनी फ्लेक्स ऑफ स्नो आर फॉलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है समरी। Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. His poetry focused on the themes of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his times. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening has been written. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening has been written by Robert Frost. It tells the story of a man who is traveling to his hometown. When he reaches the woods, he is enchanted by its natural beauty. The woods are so enchanting and inspiring that a poet is compelled to stop his horse to stare at the beauty of the woods. It is one of the darkest evenings of the year. Snow falling is in full swing. His horse is thinking it queer to stop by the forest without a farmhouse nearby. There is a frozen lake beside the woods. There are sounds of harness, bells of horse, downy flakes, and wind blowing through the trees. The poet is deeply fascinated by the natural beauty of the woods. These lovely dark and deep woods attract him so much, but he has so many things to do and he has many miles to go before he can go to bed for sleeping. Sleep in this poem is a symbol of everyday sleep and also it stands for eternal sleep, that is death. One may think that the speaker is empty towards that which he considered lovely, dark and deep, but that he has many responsibilities to perform before he can go to sleep. In short, the poem points out the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. यहाँ तक ये समरी। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्लोसरी के ये जितने वर्ड्स हैं इन सब के आपने मीनिंग्स याद करने लाजमी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, वो कह रहा है कि जी ये जो आपको सेंटेंस दिया गया ये बताओ डायरेक्टली सपोर्टेड बाय पोइम है, यानी इसका पोइम में जिक्र है कि नहीं। इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोइम, किसी न किसी तरह अपने पोइम से रिलेट करते हैं ये, या फिर स्टेटमेंट नॉन अप्रोप्रिएटेड बाय एविडेंस, यहाँ पे इनका जिक्र नहीं है पोइम में। तो पहला है जी इट इज़ अ कोल्ड एंड डार्क विंटर, तो ये हमारे पास डायरेक्टली सपोर्टेड है। उसके बाद द स्पीकर नोज द ओनर ऑफ द वुड, ये भी डायरेक्टली सपोर्टेड है। एक्चुअली स्पीकर फील्स गिल्टी, ये इन्फ्रेंस बेस्ड है। द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड शॉर्ट हिज जर्नी, ये डायरेक्टली सपोर्टेड है। द स्पीकर इज टायर्ड एंड वांट्स टू रेस्ट, ये हमारे पास स्टेटमेंट नॉट एविडेंस है।
द हॉर्स फील स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली अवर डायरेक्टली स्पॉटेड है। द स्पीकर अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ रिजल्ट, ये भी डायरेक्टली स्पॉटेड है हमारे पास। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना पार्ट ए क्या है जी, इन सब के एंटोनिम्स लिखने हैं आपने, इस तरह विलेज का सिटी, स्टॉपिंग का मूविंग, स्नो का वाटर, फ्रोजन का मेल्ट, डार्केस्ट का ब्राइटेस्ट, साउंड का साइलेंस, डाउनी का हार्ड, डीप का शैलो। नेक्स्ट हमारे पास जी सर्कल द ऑप्शंस। द पोएम इज सजेस्टिव और प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। The poem presents a conflict between obligations of life and desire to escape from them. After reading the poem, we get ready to face the challenges of life. The poem conveys to us only profound thought. Dark would symbolize death and departure to another world. नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज होता है एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा जी, वो फ्रेज जो किसी एडजेक्टिव की जगह इस्तेमाल होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। जिस तरह के आई लाइक टू सी स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्माइल की जगह यहाँ पर आएगा विद द स्माइल ऑन, यहाँ पर ये है जी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद जी एडवर्ब फ्रेज क्या है जी, एडवर्ब फ्रेज वो जो एडवर्ब की जगह इस्तेमाल कर सके, ही रैन क्विकली, क्विकली की जगह आ जाएगा अली रैन एट ग्रेट स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कह रहा है जी इनको रिप्लेस करो, एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस करो एडजेक्टिव। वो पहला है जी ही रोट आ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, यहाँ पर क्या आएगा जी ही वोर आ सिल्क टर्बन। उसके बाद जी ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, यहाँ पे क्या है जी ही इज़ अ फ्रेंडलेस मैन। नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर, नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ यूजलेस, ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस, ही इज़ सेंसिबल। ये क्या कहा था, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना था, वो कर दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी एडजेक्टिव को, कह रहा है जी एडवर्ब को अब एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट करो। जैसे स्विफ्टली से आएगा, स्विफ्टली की जगह आएगा एट अ हाई स्पीड, देयर की जगह आएगा एट दैट प्लेस, हार्ड की जगह आएगा विद ग्रेट एफर्ट्स, एलोक्वेंटली की जगह आएगा विद एलोक्वेंस, वेल की जगह आएगा विद गुड मैनर्स। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8। मैंने जो आपको कराया सिर्फ आपने वही याद करना है, क्योंकि बोर्ड के हवाले से सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर चैप्टर को पढ़ते हुए किसी अल्फाज की गलती होगी तो उसके लिए माजरत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।